Hello grade 5th. In previous class of English grammar, I had completed chapter number 3. Today I am starting with chapter number 4, that is pronouns. What do you mean by pronoun? Pronoun are the words that we use instead of repeating again and again any name, any noun, right? So I'll start with this. Pronoun are the words that are used in place of nouns, right? In place of noun, the words which are using, it is called pronoun. They help us to avoid the repetition of the noun. Yes. When we say, this is Sita. Sita is good girl. Sita is tall. Sita is beautiful. So instead of repeating Sita again and again, I'll use she because Sita is a girl and she is used for Sita. So why we are using pronoun? We are using pronoun to just avoid the repetitions of the noun, right? There are various kinds of noun. There are various kinds. Kinds means type. It has different types of nouns. Given below are the some pronouns of different kind, right? I, we, me, you, he, him, she, her, it, us, them, they, mine, ours, yours, his, hers, their, who, whom, which, myself, yourself, this, that, right? These all are pronoun. These all are the list of pronoun, right? Now we have to understand the types of pronoun. The first type which we are learning is personal pronoun. Personal pronoun are the pronoun which we use for identifying our own self. Like if we want to say belongings, if we want to say this is like we want to say something about their personal, right? So the personal pronoun uses for the same. Personal pronoun are used in place of names, person, animals, things. The table below is a list of personal pronouns in English, right? Personal pronoun, when we use personal pronoun when we have to show the thing which belongs to anyone. Like for example, this pen is mine. This pen is mine. ये मेरा पेन है. So जब मुझे belonging बताना है, this is mine. So I am using mine, my. ठीक है? I, me, mine. ये सारे first person singular है, right? We, us, ours. This is plural. And this is used for common gender. Why it is called for why it is used for common gender? Because I लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है. We मतलब कि जब अगर मैं बात करूँ मैं और सौम्या, तो मैं लड़की हूँ, सौम्या लड़का है, तो then too I am using we, क्योंकि मैं और सौम्या हम दो जन की बात हो रहे हैं, right? तो इट इज यूज फॉर कॉमन जेंडर. उसमें कॉमन जेंडर यूज होता है. सेकेंड पर्सन दैट इज लिसनर, हु इज लिसनिंग टू अस. जैसे यू, योर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. एंड द सेम जेंडर इज कॉमन. वाई जेंडर इज कॉमन? बिकॉज अगर मुझे लड़की को बोलना है तो भी मैं तू बोलूंगी, और लड़के को बोलना है तो भी मैं तू बोलूंगी. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू जस्ट टेल वनराज गो एंड ब्रिंग दिस, वनराज यू गो एंड ब्रिंग द चॉक. और अगर मुझे जैसे वनराज बॉय है तो भी मैंने यू यूज किया. इफ आई से वैभवी कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ चॉकलेट, वैभवी आप क्या मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे? सो वैभवी इज गर्ल, देन टू आई एम यूजिंग यू फॉर हर, राइट? तो हम यू ऐसा प्रोनाउन है जो कॉमन जेंडर मतलब गर्ल या बॉय दोनों के लिए यूज करते हैं. योर्स, इज दिस बैग योर्स? क्या ये तुम्हारा बैग है, राइट?
तो वो क्वेश्चन मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, वो क्वेश्चन मैं नमन को पूछ सकती हूँ, वो क्वेश्चन मैं अनुष्का को पूछ सकती हूँ, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. सो दिस इज यूज फॉर कॉमन, बोथ जेंडर्स वी कैन यूज दिस, राइट. थर्ड पर्सन, दैट इज द पर्सन्स, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही तुम्हारे बारे में, ना ही मेरे बारे में, ना ही हमारे बारे में, हम किसी और के ही बारे में बात करते हैं. देन वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, हिम, शी, हर, इट, ये सारे सिंगुलर के लिए हैं. जैसे ही और हिम मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, शी और अर फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है, एंड इट इज फॉर न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मतलब कि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए, राइट. एंड देम और दे, जब भी प्लूरल होता है तब हम देम या दे यूज करते हैं. दैट इज फॉर कॉमन जेंडर, राइट. So with this I'll start with the exercise. Exercise A, CW in today's date. Fill in the blanks with a suitable personal pronoun. Right? Number 1. The captain and the team members posed with the trophy. Captain and the team members ने trophy के साथ pose किया. Pose किया मतलब फोटो खिंचाने के लिए ऐसे खड़े हो गए. They had won it again after 5 years. I use they here because here कैप्टन एक है बट टीम मेंबर्स ज्यादा हैं, और अगर कैप्टन एंड टीम मेंबर भी होता तो दे आर मोर देन वन. सो इट इज दे हैड वॉन इट. यहाँ ट्रॉफी की बात हो रही है. सो दे हैड वॉन इट अगेन आफ्टर 5 years. उन्होंने ये ट्रॉफी 5 years के बाद, मतलब 5 साल के बाद जीता है. The little boy started crying whenever his mother left him alone. The little boy started crying. Little boy ने रोना शुरू कर दिया जब भी उसकी मदर उसको छोड़ के गई. तो हमने यहाँ उसके लिए हिम यूज किया क्योंकि बॉय मस्कुलिन जेंडर है, राइट. सो वी विल यूज हिम हियर. रॉबर्ट आस्क्ड अखिल. रॉबर्ट ने अखिल को पूछा. रॉबर्ट भी लड़का है, अखिल भी लड़का है, लेकिन रॉबर्ट जब अखिल को पूछेगा तो यू बोलेगा, राइट. और कैन यू गेट मी, मतलब अगर मैं कहूंगी रॉबर्ट ने अखिल को कहा कि तुम मेरे लिए कॉफी लेके आओ, तो रॉबर्ट ने अपने लिए कॉफी मंगाई, तो रॉबर्ट ऐसे थोड़ी बोलेगा कैन यू गेट रॉबर्ट कॉफी, रॉबर्ट अ कप ऑफ कॉफी, मतलब मुझे बोलेगा ना. सो कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी. रॉबर्ट कहता है आप मेरे लिए एक कॉफी लेके आओगे प्लीज. सो द आंसर इज कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी. नंबर 4. When I entered the office, the guard asked me for the identity card. When I entered office, जब मैंने ऑफिस एंटर किया तो गार्ड मेरे पास ही मांगेगा ना, राइट. तो द गार्ड आस्क्ड मी फॉर द आइडेंटिटी कार्ड. नंबर 5. Satish and I saw some poor children begging in the street. सतीश एंड मैंने थोड़े गरीब बच्चों को बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए कहाँ देखा, स्ट्रीट में. सतीश एंड आई सॉ सम चिल्ड्रन बेगिंग इन द स्ट्रीट. वी बॉट ब्रेड एंड एग्स फॉर देम. हियर आई यूज वी फॉर सतीश एंड आई. एंड किनके लेके कौन लेके आया, तो हम लेके आए, और किसके लिए लेके आए, तो उनके लिए. मैं हमेशा ये वर्ड कहती हूँ जस्ट अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आपको कहाँ कौन सा प्रोनाउन लगाना है. और प्रोनाउन की बात जाने दो, कोई भी चीज आप अपनी ओन लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करते रहोगे,
उसको ट्रांसलेट करते रहोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप सेंटेंस को हिंदी में या फिर आपकी ओन लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर लेते हो ना, दिमाग में ही करो. मैं नहीं बोल रही यू जस्ट हैव टू utter the words every time. No, you don't have to. But whenever you feel like this, you have to just translate all the words in your mind and you have to understand what they want to say. And it will be very easy for you to know the proper pronunciations. Whatever the words you want to choose, you can do it very easily. So make this habit every time. With this, I'll end this class and hope this is clear to you all. And your exercise, your homework is you will write exercise A in your notebook, and yes, you will write it by your own self. You have to just copy the questions and you have to get it answer done by yourself without checking in textbook. Okay, with this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.